हम लोग का फोकस रहता है कि वी ट्राई टू ब्रिंग ऑन पीपल हु हैव अ ह्यूज नॉलेज बेस. राइट नाउ वी आर नॉट ब्रिंगिंग पीपल हु हैव मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन फॉलोअर्स. हम्म. क्योंकि आवर कोर बिलीफ इज दैट कि अगर आपके पास नॉलेज है यू विल रीच आउट टू द पीपल. So today we have a guest who has a huge knowledge base when it comes to the field of design. So every podcast starts with an introduction. So I want you to give our viewers a quick small introduction about yourselves. So, hi Dheeraj. Firstly, for thank you for having me here. Hi guys, this is Shantanu Deshpande. So, as Dheeraj said, I don't have million followers, but I have knowledge which is worth a million. And you surely have a million followers after designing. Yeah, thank you. Let's hope for that. So, yeah, myself Shantanu Deshpande. I am currently working as a product manager. Uh, Associate product manager to be very technical. Hopefully, I get promoted as a product manager soon. So yeah, um, I've been working as a product manager since like 1 or 2 years now, and before that, I was specialized as UI UX designer, and before that, I was a graphic designer where I started my own venture as well, which is currently have been successfully running by my wife. So I help her in the most crucial aspect where I can play a important role. So kind of fulfilling both the responsibilities as a professional individual who is doing his own career as a product manager and then helping my wife as well in growing the business. So yeah, that So is the could journey. you And tell us the name of your company and also the years of experience that you have into this field? so the name of company is the Emerging Ray Digital Production, Okay. and it has been running since like last 6 years on paper and last 8 years off paper. Okay. Like everyone start their company like without the official documentation, and then so we started like 2 years before. We started getting the projects and everything. That is called a freelance phase. Then we started hiring, and then we registered the business 2 years after. So then we became official. So yeah, the Emerging Ray is the company name, and it's been operated currently by my wife solely. Yeah. Nice. And how did you get into this field of design? Because every designer that I have met by now has a different story of how they got into design. So I want to know your story how you got into design. So the design field actually, I got inspired and introduced in the early 2010s. So in the start of my 11th or 12th, like I was in 2011 and 12, when we started कि एक दूसरे के फोटोज खींच के एडिट करते, तो वो एक अच्छा फेस था वहाँ पे. सो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू एडोब फोटोशॉप कि बैकग्राउंड ब्लर करने वाली एप्लीकेशन या स्मार्टफोन्स उस टाइम ऐसे नहीं आते थे जो डीएसएलआर वाले दे. एंड क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे डीएसएलआर से फोटो खींचते थे तो उनके बैकग्राउंड ब्लर रहते थे. तो हमारे पास में उतना पैसा था नहीं कि डीएसएलआर खरीद पाए, तो हम मैन्युअल अप्रोच पे जाते थे. तो Uh, हाँ, वहां से गूगल पिकासा स्टूडियो और फिर एडोब फोटोशॉप यहाँ से चालू करा दोस्तों के पिक एडिट करना, दोस्तों के लिए छोटी छोटी डिजाइन्स बनाना. तो वहां से 2012-13 से जर्नी शुरू हो गई थी डिजाइनिंग में, बट पता नहीं था कि एट द एंड करियर इसमें ही बनेगा. बट आई एम फॉर्चुनेट कि आई एम वर्किंग करेंटली इन द फील्ड ऑफ डिजाइन वेयर आई हैव द मोस्ट इंटरेस्ट इनटू. सो हाँ, so इंट्रोडक्शन तो 2012-13 से हुआ था. so I guess you started way back 2012-13. I started my design journey around like 2020 में, तो maybe 4-5 हम्म. years back. तो जब मैंने चालू किया था तो I got a good exposure to YouTube videos वगैरह या इंटरचाला वगैरह के courses वगैरह. तो I am a self-taught designer, right? Are you too a self-taught designer or like you went to some design school, something like that? What was the thing? सो यूट्यूब वीडियोस तो तब भी थे, बस उतने बनाने वाले नहीं थे, Okay. बनाने वाले कम थे. एंड उस टाइम ना जैक स्पैरो वर्जन बहुत ज्यादा चलता था एडोब का. मतलब Okay. हर कोई एवरीवन यूज्ड टू रन द क्रैक वर्जन, कहीं कहीं से ला के टोरेंट से डाउनलोड करके. These days it is very easy to subscribe as well. विंडोज भी सबके पास लाइसेंस रहता है, सब्सक्रिप्शन रहते हैं एडोब पे, तो बहुत इजी हो जाता है एंड मनी मेकिंग बहुत इजी है, तो एवरीवन कैन अफोर्ड दैट. बट उस टाइम पे थोड़ा सा जुगाड़ करके पहले तो
यू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा लिमिट कि आपके पास दिन भर का 1 GB या 1.5 GB है, तो उसमें यू हैव टू वॉच एवरीथिंग विच यू लाइक। तो उसमें थोड़ा सा वीडियो के लिए निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो फिर भी कैसे तैसे करके थोड़ा बहुत देख के एडोब फोटोशॉप और लाइटरूम तो देख लिया, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड कि यार नहीं प्रोफेशनल करियर इसमें बनाना है, so I thought कि नहीं इंस्टीट्यूट would be a better option to have a professional degree and certificate into it कि कैसे actual pipeline work करती है। Also with institute you get exposure to moreover the professional environment where they place you and give you your first job, कि उनका भी टाइप्स रहता है अलग अलग कंपनीज से एंड अलग अलग जगह पे। तो दे सेंड यू फॉर इंटर्नशिप्स, दे गिव यू प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स, तो क्लाइंट हैंडलिंग एंड वो काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलता है। सो आई obviously both aspects are important and I did it myself कि personal learning is also there। जो इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहे हमने वो सॉफ्टवेयर सीखे हैं खुद से, क्योंकि नाम अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, सॉफ्टवेयर का आउटपुट अच्छा लगा तो खुद से सीख रहे हैं, बट जो इंस्टीट्यूट में सिखा रहे और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे तो वो भी कर रहे। So both aspects are there. So personal learning plus institute learning is there. So I completed my like animation VFX course where design is a part of it for the first sem. Graphic design was the first sem. तो वो अरीना एनिमेशन से किया था मैंने, गीता भवन इंदौर। तो लाइक यू सेड यू वेंट टू एन इंस्टीट्यूशन, तो आई डिड नॉट, राइट? तो मेरे को लाइक कोर डिफरेंस बता सकते हो आप कि लाइक फॉर अ डिज़ाइनर हु हैज़ नॉट बीन टू एन इंस्टीट्यूट एंड फॉर अ डिज़ाइनर हु हैज़ बीन टू एन इंस्टीट्यूट क्या फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट की वजह से? कि लाइक व्हेन यू गो टू एन इंस्टीट्यूट आप किस तरीके से बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू इम्प्रूव? हम्म। सो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट में ऐसा है डिफरेंस कि नॉन इंस्टीट्यूट में यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू जज योर वर्क, and because you don't have that much kind of experience to make a comment on your own work, right? आप घूम फिर के आके उसमें थोड़ा बहुत ट्वीक करते रहोगे, बट आपने क्यों ट्वीक किया या क्या क्या ट्वीक करना है या कैसे वो अच्छा बनेगा वो उसका कोई जज है नहीं। आप खुद ही जज कर रहे हो, आप खुद ही बना रहे हो, आप खुद ही देख रहे हो कि ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। बट देन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, द टीचर हु टीचर्स यू हैज इट्स ओन विजन पर्सपेक्टिव, has its own knowledge, तो वो आपको गाइड करते हैं। Then you make your new friends who are all into creative field. So before going to institute, मेरे सारे फ्रेंड को मैं कुछ भी दिखा दूं मैं बना के, वो सब बोलते थे भाई ने बनाया अच्छा बनाया। तो वो एक चीज रहती है। बट देन यू गो टू इंस्टीट्यूट तो सारे ही क्रिएटिव बैठे, सारे बैठे, तो यू शो योर डिजाइन, तो ऐसा इसमें ये हो सकता है भाई, इसमें ये हो सकता है भाई, तूने ये क्यों नहीं किया भाई। सो वो एक तो कॉन्वर्जेशन हेल्प करती है, दैट एनवायरमेंट वेयर ऑल आर क्रिएटिव पर्सन एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन योर डिजाइन कि भाई क्या अच्छा हो सकता है, तो दैट वर्क्स फर्स्ट थिंग। तो एक तो आपको ऐसे लोगों से फीडबैक मिलता है जो आपके जैसे हैं, तो आपको वहां से सीखने मिलता है कि हाँ यार ये भी सोच सकते थे, ये भी सोच सकते थे। देन यू गेट एन प्रोफेशनल आइडिया एज वेल, क्योंकि आपके टीचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो वहां से आपको एक प्रोफेशनल मिलता है तरीका कि यार आपने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। लाइक हमारे एक टीचर थे, हमने कुछ ट्रेस किया था लोगो, तो ऐसे आर्टबोर्ड पे तो सही दिख रहा था, जैसे ही उन्होंने जूम किया स्केल टू 1000%, उसमें गैप्स थी। ओके। तो जब ये चीजें समझ में आती है कि यार योर डिजाइन इज नॉट जस्ट समथिंग कि वो 50% स्क्रीन रेशो पे सही दिख रही है, इट शुड लुक टुवर्ड्स द पॉइंट कि उसको कोई जूम करके अगर 1000% पे भी चले जाए ना तो भी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज काइंड ऑफ अ प्रिसीजन लेवल जो कि आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन सिखा सकता है। तो इंस्टीट्यूट का रोल प्ले करना व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। दिस इज़ अ लाइक अ वेरी नाइस पॉइंट दैट यू जस्ट सेड कि लाइक इंस्टीट्यूट में जाने के बाद यू गेट फीडबैक्स एंड दैट इज़ वेयर यू इम्प्रूव, बिकॉज आई हम्म। पर्सनली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वाज द सेम गाय जिसको लाइक खुद ही कर रहा है, सब सब खुद ने बनाया है इसलिए सब अच्छा ओके। कर रहा है। बट देन व्हेन आई वेंट टू एन ऑफिस एनवायरनमेंट मेरे साथ हम्म। आई हैड पीपल हु वर मोर एक्सपीरियंस दैन मी। तो होता है था कि लाइक यू हैव मेड समथिंग, यू हैव गिवन देम द आउटपुट एंड मे बी इट इज़ नॉट दैट गुड इनफ एट दैट पॉइंट कि वो इंडस्ट्री लेवल को मैच कर पाए, राइट? तो जो फीडबैक सामने से आ रहा है दैट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। एंड राइट। आप जब इंटर्नशिप या फिर बिगनिंग स्टेजेस में हो तो
तो you are maybe not that well exposed to that environment कि you take that feedback good. जैसे आपने बोला कि आपके दोस्त लोग ने हम्म। भाई ने बनाया तो सब सही बनाया. तो तो that is where you learn कि how to take a feedback and improve yourself, right? So that is a very good करेक्ट। point that you just mentioned. Another thing हम्म। that जो मुझे आपसे जाननी थी, like what is design? The the reason that I want to know this from you is because कि मोस्ट ऑफ द पीपल मास ऑडियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑडियंस, उनको पता ही नहीं कि डिज़ाइन क्या है. दे यूजुअली थिंक कि एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ रख दी, अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें, तो अरे ये तो डिज़ाइन हो गया. बट दैट इज़ नॉट द केस, राइट? सो Right. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर परस्पेक्टिव व्हाट एक्चुअली डिज़ाइन इज. So the way you have asked the question actually brings me to an answer where I would say design is a perspective. जहाँ पे बहुत सारी ऐसी designs है where that design communicates with you or gives you a vibe of emotion, right? Say, every design has its own language. Either it's a thing that is exists on a physical world, your bed, your chair, your lamp, your stool, chair, cloth, the way the t-shirt you are wearing is a type of design, right? So every design language is different. Either it makes you feel good, either it communicates with you in a certain way, or triggers something out of you. Uh, with triggering, I meant the the way every marketing ad performs, right? So every individual in a daytime scrolls through Instagram and watches 5,000 ads, right? Every ad is kind of just trying to trigger that sales perspective out of it. So every design has its own role, like how they are communicating their own thing. किसी डिजाइन को देख के ऐसा लगता है इंस्पिरेशनल कि यार क्या सही चीज बनी है, राइट? एंड कोई चीज सही नहीं होती है बट फिर भी वो विद टाइम इंस्पिरेशनल हो जाती है. सो लेट्स से आज इफ यू से अ बास्केटबॉल प्लेयर जंपिंग विद अ हैंड बास्केटबॉल के साथ में, एंड यू से वो डिजाइन कितनी अच्छी लग सकती है, बट दैट इज अ जॉर्डन्स लोगो. अब आप उसको कहीं पे देख के बता दो, सो जस्ट अ टिक एंड यू से नाइकी, राइट? एंड यू से कि यार ये वाइब है. अब एक प्लेन टी शर्ट के ऊपर आज 2025 में आप टिक लगा के दे दो किसी को कि आप प्रिंट करा लो, नो बडी विल accept it, right? So design is a perspective at the end. कि either you have to make a strong communication perspective. The brand that has worked since 50 years has that kind of ability to put a thing or impact you in a way कि यार this is something that I wanted, right? But at the same time, a intern sitting in a normal graphic design studio giving a basic thing कि यार ये टी शर्ट पे सिर्फ एक डॉट ही होना चाहिए एंड इट विल इम्पैक्ट, बट उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन उतनी नहीं है. तो द पर्सपेक्टिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि ये तो छोटे डिजाइनर ने बनाया, दिस इज नॉट गुड. वहीं पे अगर वो उसके नीचे वो डॉट के नीचे अगर होता कि पिकासो का साइन होता, तो आई वुड बेट कि वो शायद 2.5-3 मिलियन का शर्ट बिक जाता. सो एवरीथिंग हैज अ पर्सपेक्टिव इनटू इट, राइट? एंड अ इम्पैक्ट इनटू इट. सो डिजाइनिंग में लेट्स से अगर आप कोई लेके आते अभी जो 3-4 मिलियन वाला होता डिजाइनर जिसके फॉलोअर्स होते इनटू इट, एंड वो एक कोई चीज बता दो दैट हैज मोर इम्पैक्ट काइंड ऑफ समवन हु इज just having his first podcast and introducing someone to the design. So design is entirely a perspective game, right? Who is speaking and what is speaking and how it is impacting your life. So when it comes to you understanding कि लोग एक साथ चीजें रख देते हैं एंड उसको डिजाइन बोलते हैं, एंड कुछ चीज उसको कोई लोग ऐसे रहते हैं जिनको वो चीज अच्छी भी लगती है, राइट? मैं अपनी डिजाइन बना के किसी को दिखाता हूँ तो 100 में से हो सकता है 10 लोग ऐसे हो जो बोले क्या बना दिया भाई, एंड 90 बोले कि क्या बना दिया भाई. सेंटेंस सेम है, बोलने का तरीका अलग है, राइट? Correct. एंड everyone has this kind of a thing. So design is a perspective. At the end, I would say conclusively for a design in a professional way, you need to understand the vision you are working for. Either you are a freelancer, either you are a individual who is just doing the hobby kind of a thing, let's say a art, or either you are a professional expert who is running financial great designs and who is dealing into millions. So you need to understand the vision with whom you are communicating. At the end of the day, that design will be seen by someone, right? With the financial perspective, either with the
creative perspective or with the end goal, whatever the end goal of that design is, you need to understand the end goal of the design. If you understand that zeal of it, that where your design will be communicated at the end and what you want to communicate at that end perspective, you will have your entire kind of message clear that what I need to make, right? Because if the end goal of design is clear, what you want to communicate, Correct. everything gets in sync. Correct. Correct. And if So you miss that message, sure, sure, sure. that is a very crucial thing, that if you miss that message कि at the end क्या बोलेगी ये डिजाइन, Hmm. एंड जस्ट यू से कि विजुअली अच्छा दिखना चाहिए, तो फिर वो पूरा डोमिनो इफेक्ट के साथ सब गिरता है और वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, रायता फैल जाता है. करेक्ट सो लाइक एकदम सिंपली अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ ना इस चीज़ को द एंड गोल नीड्स टू बी क्लियर अभी जो नॉन या डिज़ाइनर्स है तो उनके लिए मैं एक चीज़ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ यू कैन डू इट अगर मेरा गोल है टू बिकम फिट सो आई विल जस्ट ब्रेक डाउन कि मुझे रोज़ जाके एक्सरसाइज करना है दिन के करेक्ट 7 बजे मुझे जाके एक्सरसाइज करना है मुझे 5 बजे खाना है 2 बजे खाना है 3 बजे खाना है ये भी तो सारी डिज़ाइन है ये भी तो सारा डिज़ाइन करेक्ट प्रोसेस है सो दिस इज़ हाउ डिज़ाइन you have to be यस clear with your end goal right so talking of which मुझे आपसे ये भी जानना है कि again the most of the people only know about what they know about design is कि there are very few limitations I can say कि graphic design हो गया UI UX design हो गया mostly लोगों को यही पता है are there any other things that people don't know about design कि किस किस प्रकार के designs होते हैं किस किस प्रकार के designers होते हैं तो वो बता सकते हैं सर So graphic design, when say graphic designer, right? So graphic designer in itself has many types of designers, right? So when you say graphic designer, there is a social media post, which is a social media flyer designer. Then there is a YouTube thumbnail designer, which is specifically related to YouTube thumbnail. You can't expect a social media designer to make a top-notch Mr. Beast YouTube cover, right? That will has its own editing style. Then there is a packaging designer. So again, you can't expect a packaging designer to make YouTube cover or YouTube cover designer to make a packaging, right? Yes, at a some limit, they all collide as a graphic design, so they can make some stuff. But when I'm talking about a finishing or a kind of a professional grade design, so every designer has its own kind of a professional way and professional language where they are experts, right? So when we speak about graphic design, there is a vast field, and there are small bits of it which are segregated around the different channels of marketing or ads or communication or a hobby segment or any other segment you say. So print media has their own kind of channel. So breaking down the graphic designing stuff as well. When I say packaging design, it's a kind of a print media design, right? So print media designer also having some kind of a specialization. So there are hoarding designers, there are billboard designers, there are flyer designers, there are like a brochure pamphlet designers, there are booklet designers, there are like a catalog designers. So product catalog also has the kind of mechanical catalog designers, fashion catalog designers. There are different aspects. So you need to have a breakdown of it. Every designer can do that at a certain point, but when we speak about a professional grade design, so let's say if I pick any graphic designer and let's say कि I am launching a car tomorrow, I need a professional catalog with it. उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बनाना, करेक्ट right? I need to get someone who is actually having an experience of automobile industry, who knows the bits and perks of it, that what needs to be done. क्योंकि अगर मैं कल कार लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरे को कार का पता है, वो मेरे से क्या पूछेगा मैं उसको बता दूंगा, पर मेरे को नहीं पता कैटलॉग में क्या आना है, पर उसने खराब बना के दिया तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई क्या बना है, मेरे कॉम्पिटिटर का देख. So every designer needs to have a knowledge of it, right? When we comes to अगर सिंपल फील्ड की बात करूँ, right? So social media design. So everyone thinks कि social media design is kind of a easy design which can be done, right? But social media design gets tricky when you have to design every single day, right? So let's say you are designing for a cafe. पहला month bang on 15 posts you did it. Second month 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए. Let's say that cafe sticks to you at 1 year timeline. ठीक है. अब
Now every day you need to create a new thing. So with the same brand, same color theme, same font, same thing, your post doesn't have to look the way you have delivered it earlier. So every day is a new challenge for that social media designer. Same thing happens when it comes to product, right? When you are specifying a product designers also has product designers in terms of print media, right? Product catalog designers to be very specific. So let's say a catalog designer in the cloth industry have to specify all the sizes, colors, and everything in one page, right? Then they have their own challenges to fit all the, like, let's say 100, 200 product in 50 pages Okay. because the client has budget of that much only. Either is a budget string or the catalog is restricted to 50 pages only from all the brand perspective whatever से. तो उसमें भी फिर एक चैलेंज आता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ गए तो क्या, बाद में प्रोडक्ट आएंगे तो क्या. सो एवरी डिजाइनर नीड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ की एलिमेंट्स, राइट. सो ये सिर्फ हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं. अभी यूआई यूएक्स में जाएंगे तो यूआई यूएक्स में कैसा है कि अगर हमने ब्रेक डाउन करे टेक्निकल वे में, तो उसमें पहले वायर फ्रेम बनता है, राइट. Correct. बट वेरी स्पेसिफिकली अगर यूआई डिजाइनर ने ही वायर फ्रेम बनाए हैं, तो दैट इज गुड टू गो, क्योंकि उसको पता है उसने कहाँ क्या रखा है, वो क्या बनाने वाला है. अगर वायर फ्रेम किसी और ने बनाया है और उसको दिया है कि यहाँ पे ये आना चाहिए, सो दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग द क्रिएटिविटी एज वेल. तो फिर वहां पे वो चीज आ जाती है कि अब मेरे को सीटीए इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल में ही सेट करके देना है. आई कांट एक्सपेरिमेंट मच, राइट. सो दिस इज अ टर्म्स ऑफ टेक्निकल पर्सपेक्टिव. तो हर डिजाइनर हैज इट्स ओन चैलेंज. बट अब ये चीज जो मैंने आपको बोली कि अगर वायर फ्रेम बन के आ रहा है और फिर यूआई डिजाइनर को बनाना है, सो अब आप ये किसी सोशल मीडिया वाले को उठा करके अगर दे दोगे डिजाइन, तो उसकी आदत नहीं है. दे हैव अ ब्लैंक वाइट कैनवास वेयर दे कैन प्ले आराम से रोज, राइट. एंड देन यू आर लिमिटिंग देमसेल्फ कि नहीं भाई, तूने ये जो बॉक्स बनाया ना, ये 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का ही होना चाहिए. तो you are Okay. actually making them out of their comfort zone, and whenever someone slips out of their comfort zone na, they underperform. Okay. So कंफर्ट जोन में रह करके किसी की भी एबिलिटी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. सो व्हेन वी आर ब्रेकिंग डाउन द फील्ड्स ना, देयर आर सो मेनी फील्ड्स आई कैन टॉक अबाउट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ओनली. अभी जो बताया इट्स जस्ट लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड एवरी दिस फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कैटलॉग डिजाइनर, यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर, they have their specific job roles as well, which is ongoing in the current industry, right? Yes. I have a friend who is working for a bigger YouTube channel, which is at a very peak of it, like millions of followers है उनके. So that has a specific YouTube cover designer field, जो कि सिर्फ YouTube covers ही बनाता है, रील के covers बनाता है, YouTube के covers बनाता है, और उसका कोई काम नहीं. And that same YouTuber has a different aspect when it comes to graphic designer for social media. So these two roles are going ongoing in the same company. तो वो चाहता तो एक को हायर कर सकता था. सो ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको कहाँ जाना है. बट ये भी एक जर्नी है, राइट. व्हेन वी आर ब्रेकिंग डाउन, यू कांट चूज एनी वन फील्ड आउट ऑफ इट कि मैं पहले दिन से बोल दूं कि मैं यूट्यूब कवर ही बनाऊंगा. हाँ, So नहीं वो तो नहीं, वो you तो need यू to हैव make, हाँ, लर्निंग कर्व you need तो to आपको. step down in each of everything, get the knowledge of it, जो excite करे आपको, then you can proceed into mastering that particular field कि वो होता कैसे. And every field has this kind of a thing. तो graphic designing field बहुत major है. Then it comes to graphic designing के अलग segment, which is called as motion graphic design. तो motion graphic designing also has all these segments, right? So motion graphics, let's say medical motion graphics are very different. They need to show very different types of graphic element which are interacting with the actual body of humans, how they interact, what the process of it. Let's say if someone is kind of making a video on how this medicine works, so उसको मेडिसिन मुंह में जाते हुए भी दिखानी है, स्टमक के अंदर डिजोल्व होते हुए भी दिखानी है. अब ये किसी बेसिक को बोल दो तो उसको समझ में नहीं आएगा कि करूं कैसे. एवरीवन हैज दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज कि उसको करना कैसे. वहीं पे आजकल एक मोशन ग्राफिक्स चल रहे हैं, बहुत ट्रेंडी है. अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखोगे कि रियल फुटेज रहती है बिल्डिंग वगैरह की, एंड द फ्लायर कम्स आउट विच इज अ सीजी, राइट. हाँ थ्री हाँ. डी ट्रैकिंग करके करते. स्मॉल स्मॉल कैफेज आर ऑल्सो डूइंग इट, वो पे करके करवाते हैं लॉन्च पे या किसी अच्छी चीज पे.
सो दैट ऑल्सो नीड्स अ स्पेशलाइजेशन। अब वो मोशन ग्राफिक्स, एक बेसिक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को आप 3D ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग करके, लाइट वाइट मैच करके आप बोलोगे कि रेंडर निकाल के मेरे को चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट Correct. एट द एंड वो भी है मोशन ग्राफिक्स का ही पार्ट, क्योंकि उसमें सब आना है। 3D एलिमेंट भी आना है, उसमें फ्लायर भी होगा, फ्लायर के ऊपर एक 2D डिजाइन भी रिक्वायर्ड होगी, तो पाइपलाइन में सब है। ग्राफिक डिजाइन भी है, मोशन ग्राफिक एलिमेंट भी है, 3D भी है, 3D ऑब्जेक्ट्स भी है, और सिमुलेशन भी है। बट आप ये एक का नहीं है। सो डिजाइनिंग की फील्ड इतनी वास्ट है अभी कि एक एक स्पेसिफिक रोल की रिक्वायरमेंट है, राइट? एंड एवरीवन हैज टू डू एट अ सर्टेन पॉइंट सारी चीजें, ताकि वो अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाए कि वो किस में अच्छे हैं। व्हेन समवन फाइंड्स दैट इंटरेस्ट, ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ एंड मेरे को इसको अपग्रेड करना है, तो फिर वो, मतलब एक क्या कहते हैं अपने को, मोटिवेशन मिलता है फिर उस चीज से, सही है। कि वो। कभी कभी है ना, सो यूजुअली आफ्टर कोविड हुआ क्या कि देर वॉज अ न्यू थिंग दैट यूजुअली गॉट इंट्रोड्यूस। तब के लिए तो नया था, इट वॉज वर्क फ्रॉम होम, राइट? तो like let's talk about work from home, and क्योंकि like we explored how the office environment and the institutional environment आपको help करता है, but I want to talk about the challenges that come with work from home। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में होता क्या है कि यूजुअली यू डोंट हैव समवन सामने आपके बैठे नहीं है कि देख रहे हैं कि आर यू वर्किंग ऑल द टाइम, आर यू वर्किंग और यू आर नॉट, यू आर स्लीपिंग और व्हाट एल्स आर यू डूइंग। तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड अ ट्रस्ट विथ योर एम्प्लॉयज़ और द पीपल हु आर वर्किंग विथ यू? हाउ डू यू डू दैट? तो ये आपका टेक जानना था। सो हाँ, फर्स्टली चैलेंज तो काफी बड़ा था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहता है इनिशियल डेज में। तो बहुत फैंसी टर्म था पहले ही, कोविड से पहले, क्योंकि जब किसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी तो लेता था, एंड उसमें भी हमने सुना था कि लॉगिन डाल देते हैं फिर देखेंगे। तो फॉर्चुनेटली आई हैव बीन विद द पीपल्स जहाँ पे वर्क स्टाफ उतना ज्यादा था नहीं, राइट? उतना ज्यादा, विच आई से कि एकदम एमएनसी टाइप का 700-800 एम्प्लॉय की कंपनी नहीं थी, राइट? wherever I have, wherever I have worked since like past 5-6 years, वहाँ पे स्टाफ 15-20 के आसपास का था। तो उसमें क्या रहता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड रहती है ऑलरेडी। सो इफ आई गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क फ्रॉम होम कि सेट योर डेडलाइंस, राइट? इफ यू कैन सेट योर डेडलाइंस ऑन अ पर डे बेसिस ना, you can actually gain your trust, because work from home mein there is no one who is looking at you. The people are trusting you with something, right? So the environment I have worked with since like past 2-3 years, that has supported me in a way कि उन्होंने equipments भी दिए हैं, उन्होंने net expenses भी bear किए हैं, they have given me the monitor and screen as well. Fortunately the work ambience is like that, that they have supported so much कि the creative way कहीं पे रुकना नहीं चाहिए किसी का, right? The company is really good. So when you get all these things, now you need to understand that what is the value proposition that you are giving back. So when it comes to particularly me being a designer, uh, दो aspect होते हैं। When you design, you can actually manipulate someone की time लग रहा है, ठीक है? And वो कितना time लग रहा है creative field में, that is has no boundary, right? You can go back and forth and वो चीज चलते रहेगी महीनों तक भी, करेक्ट। है ना? एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एक दो फीडबैक के बाद कि क्या नहीं हो रहा है, बार बार मैसेज करके कि क्या गलत कर रहे हैं, राइट? सो इफ द वर्क एम्बियंस इज हेल्दी एंड एवरीवन इज सपोर्टिव, दे विल टेल यू कि गलत क्या कर रहे हो, एंड देन यू स्लोली स्टेडीली आप आ सकते हो उस टेंजेंट पे कि आपके दोनों के विजन मैच कर जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो अभी तक बनाया है वो गलत बनाया, या वो खराब था, या वो डिजाइन अच्छी नहीं थी। दैट इज समथिंग, वो जिसके विजन है या जिसके अंडर आप काम कर रहे हो ना, उसके साथ वो अलाइन नहीं बैठ रहा है। सो अब ऐसे अलाइन करोगे तो वो बैठेगा नहीं। वो प्रॉपरली एक स्टिक होना चाहिए कि ये प्रॉपर ऐसा मर्ज होके फॉर्म हो जाए, तो दैट वो यूनाइट चीज होती है, राइट? अगर आपकी यूनिटी साथ में नहीं है, आपकी अलाइनमेंट साथ में नहीं बैठ रही है, यू कीप ऑन डिजाइनिंग डूइंग दैट स्टफ कि ठीक है, हाँ हो गया, सामने वाले का फीडबैक आया, आपने वो भी लिया और कर दिया। सो यू नीड टू इवॉल्व एंड ग्रो एक्चुअली, एंड अंडरस्टैंड कि आपको रोज
वो चीज आपके साथ में करनी है। यू नीड टू हैव दैट डेडलाइंस विथ यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप किसी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हो, आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो यू नीड टू गो डीप डाउन कि भाई नेगेटिव क्यों मिल रहे हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट। अगर आप एज अ डिजाइनर कहीं पे वेरिएशंस भेज रहे हो, आपका एक वेरिएशन दो वेरिएशन पे अप्रूव नहीं हो रहा, आप पांच भेजो, पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट, एक ही मत भेजो। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स ना, सामने वाले को पता चलता है दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। इफ यू आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव इनटू द स्टफ व्हिच यू आर पेड फॉर, देन वो ट्रस्ट हिलता है। एंड एक बार ट्रस्ट की बात है, राइट, देयर आर मेनी पीपल्स इन द कंपनीज जो लॉग इन डाल देते हैं और एक्चुअल काम ढाई तीन घंटे बाद शुरू करते हैं। वैसा होता है और हो रहा है फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बट व्हेन यू स्टिक टू समथिंग ना, जहाँ पे आपने खुद की डेडलाइंस बनाई कि आई नीड टू ग्रो, क्योंकि एट द एंड वॉट एवर आई एम डिलीवरिंग इट टू कंपनी, समवेयर और द अदर फ्यूचर एस्पेक्ट में दिस वर्क विल बी माइंड, क्योंकि वो मैं दिखा करके आगे काम लूंगा ना। मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, राइट। मैंने किसी प्रोडक्ट पे काम किया है, लेट्स से मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर मैं प्रोडक्ट में आलसी हूँ, मैंने धीरे धीरे काम किया, मैंने पूरा दिन लेकर के डिजाइन दिए, तो कहीं ना कहीं एट द एंड मेरे को ही वो करेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम में वो प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा टाइम में बाहर आएगा, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड ही नहीं कर पाऊंगा। सो you need to be very prompt in terms of things which you deliver, right, and which is needing back and forth। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में लेकर के देखोगे क्या इसका बन सकता है। हाँ, बीइंग अ ह्यूमन, एट सम टाइम यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट, यार क्या चाहिए, right? You Exactly. send a design that gets disapproved, you again send it, that gets disapproved, and when the feedback doesn't come properly, you get irritated और frustrated कि भाई क्या बनाऊं मैं। एज अ इंडिविजुअल मेरे पास तो बहुत ऐसे लोग आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भैया क्या करूं मैं क्या बनाऊं, नहीं हो रहा है अप्रूव, है ना। तो उस फेज में क्या रहता है ना, यू नीड टू कम्युनिकेट इधर सामने वाले से जिसके लिए आप बना रहे हो। इन द कंपनी तो बहुत अच्छा है, अगर आपका कोई सीनियर है तो आप वो सीनियर को ही बोल दो कि यार आई नीड अ वेरी मच ब्रीफ, क्योंकि आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स, इट्स नॉट लाइक द डिजाइन्स आर बैड, इट इज नॉट मैचिंग टू द मैसेज दैट इज नीड्स टू बी पोर्ट्रेड। तो वेयर यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, where you are good at taking the negatives, where you are good at facing the challenges and building your own deadlines, you can gain a easy trust in work from home culture। वही बात है, ईमानदारी से बैठ जाओ और ईमानदारी से उठ भी जाओ। दे आर पेइंग यू फॉर समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉग इन टाइम एंड देर इज अ लॉग आउट टाइम। कंपनी लॉग आउट के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लॉग इन के पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो यू सिट ऑन योर टाइम, you log out at your time, you are your own boss at that particular space, because no one's gonna ask until and unless बहुत ही सर पे फट रहा है कुछ जहाँ देना ही है। तो तब तक तो आप खुद के ही बॉस हो, तो आप अगर आपके साथ में ही अगर ऑनेस्ट हो तो फिर सब चीजें ऑनेस्टली चलेगी, और ट्रस्ट एक बस गेम प्ले करेगा, वो कभी भी जाएगा नहीं, वो अपने आप रहेगा ही आपके साथ। अभी है ना, we will try to deep dive into the topic of design. We हम्म। tried to cover some aspects जो basic aspects थे, like people who don't know design, what design actually is, तो उनके लिए हमने we tried to cover and summarize what design is. So let's हम्म। actually now we'll try to like deep dive into it. By deep diving, what I really mean is कि most of the people don't know that design actually is also made by doing and understanding the psychology of things, कि अगर मैं यस। X चीज़ करूँ तो Y रिएक्शन होगा। टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैं ये बड़ा रखूँ तो यहाँ पे ही आपकी नज़र जाने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू हम्म। डेफिनेटली क्लिक ओवर दैट। तो हम्म। some aspects I want to know from your end कि how design psychology changes the overall output, कि जब आप किसी आउटपुट को देते हो तो how if basically that is the UX of things, but then that is what I राइट। want to know from you. So, when we speak about design psychology, right, we need to understand the end goal of it again. Coming to end goal, right, every psychology will hit correctly when you understand the end user correctly, right? The end person who is going to read that design or understand that design uh, and use that design when you say about UI UX. So,
इफ वी आर डिजाइनिंग फॉर अ फूड कंपनी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या साइकोलॉजिकली हिट करना है कि वो जो कस्टमर है वो एंगेज हो ऐप के साथ, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐप पे स्पेंड करे, वो ऑर्डर करके ही जाए कुछ, तो कैसे फैंसी स्टफ बनाए. द बेस्ट एग्जांपल बिटवीन स्विगी एंड जोमेटो इज स्विगी. So why I am saying Swiggy is they are the ones who started those animations kind of a stuff, that 3D elements and that stuff into the app very early. Now the Zomato is playing that kind of a stuff now. So the Swiggy is into designing so many things and so many crucial elements now कि आप बहुत fascinate हो जाते हो एकदम से कि यार वाओ, ऐप यूज करने कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट. So that is kind of a role what every designer needs to play, right? You need to at the end engage the user. Either it is a social media flyer, either it is a wall poster, either it is a bus stand पे जो आपने billboard लगाया है वो. If that catches the attention, तो वो सही है, right? So every design philosophy needs to be communicated in a way कि आप at the end वाला user समझ लो, right? कि अगर मैं एक बिलबोर्ड बना रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो किसी एक बड़े स्क्वायर पे अच्छी सिटी के लगने वाला है ना. आई कांट पुट सो मच ऑफ स्टफ ओवर देयर. व्हाई? क्योंकि जो अटेंशन स्पैन है व्यूअर का वो हार्डली 2 सेकेंड्स का है. मेजरली कॉज पीपल आर पासिंग बाय दैट रोड. नो वंस गोना स्टॉप गाड़ी की, चलो देख के इसको पढ़ूं पूरा और फिर आगे जाऊं, राइट. सो दैट डिजाइन लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट. देन सोशल मीडिया पे एवरीथिंग से एवरीवन सेज कि डोंट पुट मोर लेस इज मोर वाला फंडा अभी बहुत ट्रेंड में आया था. बट इफ देर इज समथिंग इंफॉर्मेटिव, देर इज अ कराउजल पोस्ट विच इज इंफॉर्मेटिव, एंड वहां पे कैसे लेस इज मोर. अब इंफॉर्मेशन तो बता नहीं है तो कैसे लेस इज मोर, राइट. सो यू ब्रेक डाउन दैट पोस्ट इनटू अ कराउजल पोस्ट एंड देन फर्स्ट पोस्ट में कम इंफॉर्मेशन दी एंड देन यू गेट hook the user with the content and then let them swipe and understand. तो वो एक चीज होती है. then you get to UI UX. so UI UX की फिलोसॉफी ऐसे वर्क करती है कि अगर आपको एक वेबसाइट पे किसी को लैंड होने के बाद में एंगेज कराना है, राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो यूजर कहाँ से आएगा, उसकी मेंटेलिटी क्या रहेगी, वो कहाँ क्लिक करेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम पे पीपल फोकस ऑन लैंडिंग पेज, राइट. बट लैंडिंग पेज पे फोकस करने के बाद भी यू कैंट रिलाई ऑन इट, right. There is a very good example if I say you need to install all the trackers over there, you need to get the screen recordings over there, you need to understand the user scenario, right. Bigger brands भी जो है एक बार में कोई on point उस पे नहीं पहुंची करेक्ट. है ना. There is a good example of Google. They have actually a database of कि Google 1997 में क्या था और अभी क्या है. You can go really back and forth into time on Google, right. यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने भी जो अभी टॉप नॉच यूएक्स पे वो पहुंचे हैं, यूआई पे वो पहुंचे हैं, तो वो एकदम एक दिन की बात नहीं थी. दे टुक years ऑफ टाइम. So anyone like me, you, or someone we know into the professional field, they can't reach to a magnificent kind of a design in just one day. करेक्ट. It's a data-based decision, right? करेक्ट. करेक्ट. You deliver something, you make something, and then you examine that how it is performing. वेयर आई वॉन्ट टू क्लिक. अगर तुमने बहुत बड़ा एक ऑरेंज बटन लगा दिया कि इस पे क्लिक होना चाहिए और फिर भी उस पे क्लिक नहीं आ रहा है तो वो डिजाइन की प्रॉब्लम नहीं है. यू नीड टू वर्क ऑन द प्लेसमेंट. व्हाट इज द कम्युनिकेशन लाइन. आपने एकदम ही ऑफ प्लेसमेंट कर दिया कि वो आंखों को खटक रहा है और उसको किसी को देखना ही नहीं है, तो वो वर्थ इट नहीं होगा, राइट. सो एवरी डिजाइन इज अ गुड डिजाइन, क्योंकि डिजाइनर कोई खुद नहीं चाहता कि मैं गंदा बनाऊं, राइट. दे लर्न. Design is a process actually, where we learn, we implement, we make, and then we upgrade. So upgrade means upgrade and make के बीच में जो है ना, make and upgrade, तो उसके बीच में एक आता है review phase, where the data comes, right. अगर आपका environment supportive है, अगर आपके पास में डेटा पूरा आ रहा है, गेटिंग इनटू द फिलोसॉफिकल वे इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स, अगर आपकी कंपनी आपको एक पूरा डेटा और हीट मैप दे रही है जहाँ पे यूजर्स आपको एक प्रॉपर वे में जर्नी बता रहे हैं कि दे आर क्लिकिंग ओवर देयर, दे आर क्लिकिंग ओवर देयर, बट वी नीड टू बी क्लिक्ड ओवर हियर, तो फिर देन यू कैन एक्सपेरिमेंट योर स्टफ कि यार यहाँ पे रख के देख लिया, यहाँ पे रख के देख लिया, अदर थिंग्स आर नॉट गोइंग वे, लेट्स ट्राई सम अदर अप्रोच.
and then you kind of getting your upgrade game on, right? You will experiment much, you will try much things, you will try different things, you will do your own R&D stuff which you haven't done before, क्योंकि आपके पास में वो डेटा ही नहीं था कि the end user who is communicating with the design is how they will communicate, where they are clicking, right? So it is very important process कि आप एक तो वो डेटा को कैसे समझ रहे हो, राइट? क्योंकि डेटा पढ़ना, हीट मैप्स पढ़ना भी एक प्रोसेस है, Hmm. वो आपको समझ में आ गया, उसके बाद में फिर उसको ब्रेक डाउन करके प्रॉपर सॉल्यूशन लाना भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में लेट्स से एक लैंडिंग पेज है जिसपे एक सब्सक्राइब का बटन है, राइट? एंड वो सब्सक्राइब का बटन अभी आप यहाँ यूट्यूब चैनल पे लगा दोगे, तो दिस इज अ प्रोसेस कि आपने पहले वो सब्सक्राइब का बटन 6 मिनट पे लगाया कुछ अच्छी बात करने पे, तो उस पे हिट हो गया, और अगर हिट नहीं हुआ तो यू नीड टू चेंज दैट बटन ना, कहीं पे और लगा के देखना पड़ेगा कि यहाँ लगा के देखता हूँ, सो दैट डेटा डिसीजन कम्स, राइट? वो यूट्यूब इसमें आ रहा है या यूआई यूएक्स में आ रहा है, इट इज द सेम थिंग। डेटा होना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू अ डीपर पर्सपेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग। Yes. और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के बैनर्स पोस्टर्स भी जो लगते हैं वो डेटाबेस पे ही लगते हैं, Exactly. वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका जो मैक्सिमम डेटाबेस है। अब जैसे आप किसी बड़ी ज्वेलर्स का या किसी जिनका एक करोड़ में टर्नओवर है, आप उनका कहीं पे ऐसी वैसी जगह पे बैनर लगा नहीं देखोगे, क्योंकि उनको पता है उनका क्राउड कहाँ घूम रहा है, उनको कहाँ पे टारगेट करना है, वो वहीं पे उनका बैनर लगाएंगे, Correct. राइट? एंड उनके बैनर पे इतना कुछ लिखा भी नहीं होगा। हाँ, like minimal and purposeful रहना हाँ, चाहिए सारी चीज। करेक्ट। तो Yes. वो व्यूअर अटेंशन टाइम, हु इज वीविंग, that is kind of, and what they are weaving Hmm. and what is being communicated, and at the end what are they are taking from them after reading your design, right? इसका एग्जांपल एक छोटे से इससे समझते हैं कि मैंने एक कोई डिजाइन बना के किसी को दी जिसपे 50% ऑफ है ना? Hmm. अब मैंने 50% ऑफ इतने बड़े वे में हाईलाइट किया हुआ है कि वो डिजाइन किसी कैफे रेस्टोरेंट की है, ठीक है? एंड गोल क्या है मेरा कि मैंने कैफे का लोगो और 50% ऑफ इतने अच्छे वे में हाईलाइट किया है कि वो 50% ऑफ के साथ मैंने कुछ भी तामझाम कुछ लगाया हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हो, व्यूवर उसके साथ लेके नहीं जाएगा। वो एंड गोल में वो देखने के बाद में उसको 50%. सिर्फ इतना पता रहेगा ये कैफे के ऊपर 50% ऑफ है, Correct, correct, वो correct. पहुंच जाएगा वहां पे। तो सही. यू नीड टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स कि वो उसके दिमाग में क्या छाप छोड़ने वाला है आपकी डिजाइन देख के। Yes, 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 yes. तो हाँ, डेटा ड्रिवन डिसीजंस आर वेरी Very क्रूशियल। important, very important. या, Actually, there was an event actually, जो brings me to the next topic we have यस, is AI. So कूल, AI, this is a very interesting topic when it comes to design करेक्ट because करेक्ट। लोगों को ऐसे लग रहा है कि like AI designers के job खाने वाला है ये वो there are a lot of things around this topic. So and usually people also there were a few things कि अपन दोनों साथ में भी काम कर रहे थे तो like there were a हम्म few amazing topics or workflows or pipelines that we came across and we discovered and we made. So we will हम्म। get into that. Firstly, I want to know your take on कि is it really true कि AI jobs खाने वाला है कि नहीं? Because I really think कि अगर आप skilled हो तो it is never gonna take your job. But I want to know your take on that because you have seen like the ups and downs of this industry Right. from a longer time than me. So I want to know that. So as far as AI is concerned, uh, we don't have to worry. AI जॉब नहीं खाएगा, that is for sure. AI वो चीज कम कर देगा जो रोबोटिक चीजें रहती है, मतलब रिपीटेड टास्क जो रहते हैं जो अपने को करने पड़ते हैं, फ्रॉम विच एवरी डिजाइनर इज काइंड ऑफ इरिटेटेड, यू नो, यार ये क्यों कर रहा हूँ, राइट? वो चीजें हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के प्रोसेस से। हालांकि दैट टू 100% प्रिसीजन इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, एंड आई डाउट इट विल हैपन, राइट? बिकॉज एट द एंड ह्यूमन टच इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर, सो एआई जॉब नहीं खा सकता है। फर्स्टली ऐसा लगता है लोगों को कि एआई आने के बाद में ये चीज हुई है, बट आई थिंक एआई से काफी पहले ही ये चीज हो चुकी थी कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए था डिजाइनर्स की जॉब तो खतरे में है। क्यों? क्योंकि फ्री पिक है, Hmm. राइट? आपके पास में शटर स्टॉक है,
आपके पास में कोई सा एक और वीडियो का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, राइट, यू कैन नेम देम एक्स वाई जेड। सो ये तो सब अवेलेबल है ना भाई। फ्री यूज़ के फ्री लिए। पिक पे तो फ्री यूज में अवेलेबल है, रोज के शायद 10-20 डिजाइन फ्री मिलते हैं। तो क्यों हर कैफे ओनर निकाल के सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, उसकी डिश का फोटो लगाना है, लगा दे, राइट। वाई दे आर नॉट हायरिंग, वाई दे आर नॉट डूइंग इट, राइट। अगर आप एआई में आपका फोटो खुद का भी डाल दोगे तो इट इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट योर ओन फेस, इट मेक्स अ समवन एक्स वाई जेड फेस, राइट, यू आर नॉट योर ओन। If you upload your own dish picture, it will not replicate the exact one. It will make some version of it which will a resemblance of what you have uploaded. It is not 100% of what you have uploaded. So AI is still in progress. I would not deny that it has impacted the design industry in a very vast way, but somewhere or the other, it will not take a job. It will actually create new jobs in a new way, right? करेक्ट। Let's say there will be a job जो चली गई है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं एक बैच इमेज एडिटिंग की, राइट। सो यू कैन नाउ एडिट ई कॉमर्स फोटोज वेरी इजीली यूजिंग एआई, राइट। आपको 5,000 फोटो के बैकग्राउंड रिमूव करके प्लेन बैकग्राउंड लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन, इफ यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टू पे, you can make it automate the process entirely, it will create it, right। अब it has created it, है ना। लेट्स से ये वाली जॉब चली गई, बट देन you have to use those pictures for social media, use those pictures for your Google ads, use those pictures for several different aspects XYZ you can think of. AI will not be able to resize those pictures to that particular resolutions where everything is required, right? Because AI will understand the single prompt or two, three prompts after that. It will not be a whole function where human is communicating, right? I am communicating with you is kind of a different scenario, and with AI, it is a different scenario, है ना। तो अगर 5,000 इमेज एडिट करके मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है बैकग्राउंड रिमूव कर दो, उसने कर दिया। अब दे मैंने 5,000 इमेजेस का बोला कि 6 रिजोल्यूशन बनाओ इस सब के, तो वहां पे गड़बड़ है। बस 6 इमेजेस मेरे को पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव चाहिए, सबका बैकग्राउंड रिप्लेस चाहिए। उतना प्रिसीजन आने में कितना टाइम लगेगा, आई कांट प्रिडिक्ट दैट। बट अभी बहुत स्कोप है अभी, जहाँ पे जॉब्स के बदले नई जॉब्स आएगी। अब जो बंदा बैठ के सिर्फ दिन भर बैकग्राउंड ही काट रहा है, उसमें वाइट बैकग्राउंड लगा रहा है, वो उसके जॉब से इरिटेटेड है, उसको कुछ क्रिएटिव करना है। उसको आप अगर 5,000 इमेजेस पूरी बनी बनाई दे दो जिसमें बैकग्राउंड कटा हुआ है, और उसको बोलो कि भाई इसमें कुछ क्रिएटिव करके एड ऑन चीजें डाल के, राइट। अब जैसे क्लोथिंग के ही ले लो, आप क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्लोथिंग में क्या होता है राइट नाउ, अमेजोन के ऊपर जैसे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर फोटोज अपलोड करनी रहती है, राइट। विथ एआई व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लीन द बैकग्राउंड। नाउ आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, राइट। अगर आप एआई को कितनी प्रॉम्प्ट दे दो, वो यहाँ से एक नोड निकाल के यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख पाएगा कि क्या लिखना है। वहां आपको डिजाइनर के रोल की जरूरत है, जहां आपको डिटेलिंग दिखानी कि फैब्रिक को जूम करके दिखाना है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर, तो वहां पे आपको एआई की जरूरत है। तो इवन यू कैन क्रिएट द 8 इमेजेस, जहां पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है वो आपने एआई से बना ली, पर जो 2 इमेजेस जो यूजर को आपकी प्रोडक्ट की डिटेलिंग बताएगा और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, वहां पे आपको डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एआई कांट डू दैट, राइट। एआई करेगा भी तो वो इतना मेस्ड अप हो जाएगा प्रॉम्प्ट देने में कि एवरीवन विल नॉट बी एबल टू गिव दैट प्रॉम्प्ट, है ना। इरिटेट होके किसी डिजाइनर को ही दे देगा इंसान। आई हैव पर्सनली ट्राइड इट इन मेनी डिफरेंट वेज यूजिंग एआई, यूजिंग दैट कमांड्स विच आर लाइक चैलेंजिंग इन अ वे, सर्टन वे कि कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें, मतलब आउटपुट इतना डिफरेंट आ जाता है। लाइक फर्स्ट आउटपुट तो सबको ऐसा लगता है कि अब कहाँ गए डिजाइनर्स, राइट। बट यू व्हेन यू स्टार्ट एग्जामिनिंग की डिटेल्ड पर्सपेक्टिव क्या है इसका, राइट। अभी एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल शायद मैंने शेयर किया था हमारे ग्रुप के अंदर। वो ये था कि एआई में आप प्रोडक्ट की इमेज दे दो, एक रेफरेंस इमेज दे दो, और उसको बोलो कि भैया मेरे को अपना प्रोडक्ट ये वाली इमेज में चाहिए, एंड देन चैट जीपीटी विल मेक इट कि द एग्जैक्ट क्रिएटिव विल बी फॉर्म्ड यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड द डिटेलिंग विल बी ऑन पॉइंट, राइट।
But when you start examining that particular thing, I tried it myself. I generated around like 5 to 6 images, right? And वो 5 to 6 images में क्या है ना, प्रोडक्ट की साइज बदल गई. Hmm. जो एक्चुअल प्रोडक्ट की बॉटल थी वो वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए. प्रोडक्ट की पैकेजिंग में स्लाइट चेंज था. लोगो में फिनिशिंग नहीं थी. व्हेन इट कम्स टू ब्रांड लोगो, ऑन पॉइंट होना चाहिए. ब्रांड लोगो की फिनिशिंग नहीं थी. ठीक है. जो छोटे छोटे डिटेलिंग्स रहते हैं, जैसे एक 200 ml की बॉटल है तो 200 ml छोटा सा लिखा हुआ है. अब वो फोटो में पहले ही पिक्सेलेटेड है. एआई ने उसको क्या रीड किया, तो वहां पे फिर उसने कुछ तो भी ब्लरी बना दिया. Hmm. सो इट विल बी वेरी हार्ड कि आप किस तरीके से डेटा फीड कर रहे हो. ऐसा बहुत टाइम पहले हो चुका है कि चीजें अवेलेबल है मार्केट में, है ना. ऑलरेडी देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल सिंस डेकेड्स, Hmm. राइट, विच आर सेइंग कि डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन मेक ऑन योर ओन. एनवाटो एलिमेंट्स इज अ मेजर प्ले, जहाँ पे हाँ, इन्वाइटो जहाँ एलिमेंट्स. पे लोग कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड मेक देयर ओन वीडियोस. वैसे वीडियोस चल रहे हैं क्या मार्केट में? नहीं चल रहे. कोई देखता नहीं. प्रीपिक पे टेम्पलेट्स है. चल रहे हैं क्या मार्केट में? चल रहे होंगे, लो स्केल पे चल रहे होंगे. प्रोडक्शन लेवल पे चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे. राइट. ब्रांड्स प्रीमियम लोग जो एक्चुअली एआई पे डिपेंडेंट है, वो भी एआई की एक सर्टेन लेवल तक ही हेल्प लेते हैं. बिकॉज दे वांट देयर कंटेंट टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी कम्युनिकेटिव एंड वेरी ओरिजिनल. सो दिस दे आर स्टिल हायरिंग कॉपी राइटर्स. ठीक है. They are still hiring designers who can design their own content, like in a way, if they can use it like a mixture of all those stuff around the internet, it is good to go. As far as it is a original thing, right? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री पिक से उठा के एज इट इज वेक्टर यूज कर लो, बट एट द एंड यू हैव टू गिव योर ओन टच, राइट. Correct, correct, So correct. where you are making your own touch, where you are making your true designs, it will always stand out in comparison to AI. Because the detailing your original design will have, right? That is a another game, and the brands are mainly focused over detailing only. So basically, what you are trying to say is maybe AI lacks creativity. Is that what you are trying to say? कि उसे human touch तो लगेगा ही लगेगा. और वो भी तो सीन है हाँ. कि like अगर मैं एक prompt mid journey को दूँ, एक same prompt में जाके co-pilot को दूँ, तो दोनों का output फिर भी अलग ही होने वाला है, even though the prompt was same. तो ये सारी चीज़ें करेक्ट. अभी भी तो है that needs to be like चलो ये improved. अपन मान लेते हैं, लेट्स से अभी पॉडकास्ट के अंदर भी अज्यूम वी आर नेक्स्ट 10 years अहेड, राइट. अपन जो बना रहे वो निकल रहा है एआई से. वॉट एवर डिजाइन यू मेक यू आर हैविंग. ठीक है. तब भी मैं तुमको बताता हूँ इसमें ड्रॉबैक क्या Okay? है ना. उसमें ड्रॉबैक ये है कि इफ समवन डिजाइन्स, है ना, आपने डिजाइन बना दी, आई बेट कि वो एग्जैक्ट डिजाइन में उसको बोलो कि ये लगा दे या ये छोटा कर दे, बड़ा कर दे, इट विल मेस अप. हाँ, that तो it is ठीक है. correct. And in next 10 years also it will be there, because I have understood one thing: the way these programs are functioning is the way the data is being uploaded into them or fetched into them, right. They have understood the data, they have the theoretical knowledge, they have all the knowledge which is there in the industry, right. But they don't have a kind of a human understanding of what we process, how we process, and how we communicate, right. आप किसी भी डिजाइन को लो, उस पे एआई को बोलो कि भाई ये मेरा ब्रांड का लोगो है, ये इस पे लगा दे, है ना. अब उस पे स्ट्रोक मार दे, वो ब्रांड का लोगो दिख नहीं रहा है, उस पे कलर चेंज कर दे. एआई ये बैक टू बैक फीडबैक नहीं कर पाएगा, या करेगा तो बहुत मैसअप कर देगा डिजाइन को. आई बेट यू ट्राई इट, यू विल फेच इट. ओ, लेट्स नॉट ट्राई इट, आई हैव सीन इट. A big shout out to Unmesh Dinda, who is Pixim Perfect founder. He's a very nice guy, makes a Photoshop tutorial. I follow him personally. So I guess he has uploaded the video around 2 days back, 3 days back. So you can check that video. He actually told him that he actually compared his output with ChatGPT. AI do mess up things. So whatever things I'm telling you, right? He has experienced the same things on his side. So when I watched that video, I said, हाँ भाई सही पकड़ा. यही तो मैं बोल रहा था कि एआई नहीं कर पाएगा इतनी डिटेल. सही है. So Right. like
now we figured out like what things AI is not able to do, right? But there were a few things that we were able to pull off, and then we were able Correct. to like fasten things up in our pipeline Hmm. when we were working together. Maybe we were working on the 3D wala pipeline. So let's get into that first. Ki how AI will be able to help in the current situation, scenario to 2025 wala scenario, where AI is actually helping to do things fast. If you learn these Yeah. things, then AI will be able to help you out. So let's firstly, I would like you to tell how to do that 3D wala thing that the other day you were explaining me. Uh, Yeah. I would have loved to, but I learned it from you, so you will have to explain that first. So it So is like I have been a very fan of like Freepik AI, mhm. right? That is kind of a aggregator of all the AI tools that exist in the market in terms of video generation, and in terms of AI, the Freepik AI has a very creative approach to the AI generators, which they have developed on their own. They call Mystic, Flow, uh, like they have their classic, fast, and everything like that going on. So I simply we have to create the image from there, the Freepik AI stuff, and then there is a platform which is called Hyper 3D, Ronin 3D, I guess, to be Oh, very heard about specific. it. Yeah. So once you upload that image to the generated image, whichever character or whichever 3D you can take asset or generate AI image from Freepik, you can actually go into Ronin 3D and can upload that. Once you upload, you get a 3D kind of a perspective of all that particular object or whatever the asset or character you have uploaded. Then you can export the OBJ out of it, generate the AI material and export the material out of it. Straight up open the Blender, put the object, import the object, put the material, and then bang on. Whatever you have generated on FreePay is straight into your Blender perspective, and you can actually use that 3D stuff and animate the character using Mixamo Adobe free plugin to animate the characters. We know that. So that is a kind of a pipeline, a basic pipeline using 3, 4 AIs and making the work done. But there as well, when it comes to AI, right, you can use it how to fasten your work, right? So let's say if we have the mascot, right, in a 3D world, and we are like falling short because AI can't generate the similar character sheet, right? Like let's say with the character sheet, what I meant is a single character in all the four perspective, top, left, six perspective, top, left, bottom, right, left, all the perspectives where we can imagine the character body, length, the width and height of all the parts and everything. We can imagine it more deeply while modeling stuff in 3D, right? Going very technical into that. So when we model stuff in 3D, we need all those perspective imagined, right? We need to draw them either. We need to get the references out of them and then place into the camera of top, left, everything there, and then slowly and steadily start with plane and then modeling. It takes hours of time. Either if the sculpting artist is there, then they'll sculpt it right from a sphere or something like that, and they'll start into detailing perspective, putting details onto it with sculpting and all those tools using ZBrush or Blender sculpting or anything like that. But with AI, what you can do is with the pipeline I told, like generate image from 3D, generate a took a 3D image generator tool that can help you transform image into 3D. What it can give you, it can give you a 3D object, which is not super fine, but it has the detail of 360 around it, right? There is a process which is technically called retopology, where you build the mesh on the mesh and you align the polygons in a way that you want it to be, Okay, okay, like right? तो जिन्हें पता नहीं है mesh क्या है तो उन्हें like एकदम basic से एकदम basic से. Huh. So, mesh is basically formed by using the vertices. Vertices is a point, the first point in a 3D element. A group of vertices forms a mesh. Mesh is kind of something which, as combined, forms an object in 3D, which we can examine in 360-degree in a 3D perspective tool, which is Blender, Adobe Maya, like 3D After Effects also has kind of thing, a 3D element into it. Cinema 4D,
all those softwares have this kind of a 3D tool where we can examine those meshes, right? So all those meshes needs to have in a certain flow. You can't mess it up if you want to use it in a certain way, right? For gaming perspective, those meshes needs to be in certain count, right? So let's say I am modeling a character for gaming, right? That characters needs to be under 5,000 polygons. With Correct. polygons, I'll say the polygons needs to be a group of four vertices, which is forming a cube, right? So that is called as polygon. So if I say कि मेरे को पॉलीगॉन्स ही चाहिए सिर्फ 5,000 और 5,000 पॉलीगॉन्स के अंदर ही उसको लेके जाना है तो वो कैरेक्टर को 5,000 पॉलीगॉन के अंदर ले जाना है तो I can tell AI but AI will actually not give a flow which is be able to I will rig the character, right? Mm-hmm. Rigging needs a particular flow of polygon meshes in a certain direction that it will align with the character to perform better, right? So all these technical details are there when we go layer by layer into the pipeline of making the character, right? What you can use the AI for is you have a 2D design of a character, you can feed into AI engine and get the image out of it, which is a really nice looking image. Then you can get a 3D image generator tool which can transform 2D image into 3D, and then you can import your character into 3D. What it does is it gives you a highly detailed 3D character into your preferred software, right? Which you can easily do a retopology of and create your own character out of it. So the hours, at least a 3 day of work could be Mm-hmm. into just 15 minutes to half an hour of time, and you can just do the retopology. Correct. Before that, what needs to happen is you need to either form all the perspectives, draw the mesh by your hand, and then correct the flow of it as per the rigging. And if the polygons are higher than required, then you need to retopolize it. Now you Correct. are performing the actual end step because model is already there. Correct. So that is a kind of flexibility AI will give or is giving. Yes, yes, it actually is Yeah, because this brings me to the time where we were actually working on like this was the time where NFTs was in trend and we were yeah, making NFTs. So we were actually making 3D models out of it and then this was like a yeah, complete एक दो महीने का timeline था. yeah, And I guess after that, after the image generation, mid journey, and all of that, उसी के बाद I guess NFTs were like a bit downfall correct. situation. But then उसके बाद if at that time I had this user flow or this pipeline जहाँ पे AI है, that would have like literally saved us months and months of works, Actually, right? So actually. that is the main reason I brought this question up. कि, yeah, this is it. Hmm. Any other AI tools you would like the viewers to use in any other ways you want to say? So I would recommend that finding them on your own is kind of a very good hustle. What Correct. so that is kind of something that every time you search for something, you will find a new AI engine running for it, right? Yeah, yeah, yeah. So that is kind of a good game. So I would recommend to go and search for that. But yeah, for someone who is looking for it to just speed up the pipeline, I'll give some good AI tools which are working there. So for the quick video generations, like say you need to animate a shot from a still image, uh, rather than going to several different platforms, you can use a free pick that have aggregated Runway ML, Kling, which is Google Imagen 3. So they have aggregated all that stuff and they are supporting all that stuff. On the top of it, they have their own video generation tool as well, which is working. That can actually have they have the animated thumbnails as well, that how your shot will perform. So anyone who doesn't have a knowledge of how the orbit shot looks, orbit right, orbit left, pan up, pan down, how that technical details function, they have an animated GIF which shows that how the camera will move. You can easily select that. You can easily upload your image. Though this video is not sponsored by FreeFake, I'd say. But yeah, Maybe they will soon sponsor us. but yeah, that makes a very workflow very easy, right? So I take the example of my wife, right? She's running the company. She is not into that technical specific things, right? What is the
how the camera techniques works, how the motion works, how the things works in terms of camera. She find it very easy to use Freepik in comparison to Kling actual software, Runway ML actual software, because they have their own kind of a specific UI which differs, right? The Freepik has actually worked in the UI very simplistic way that everyone can use it on their day-to-day basis. Also, they have made it very comfortable in using phone as well. So the same thing works on your phone as well. You can have a go-to engine, AI engine, where you can make stuff and directly publish onto your platform. Okay. So that's why I'm recommending. Freepik do have a free plan as well where they support like 20 image generation per day and video generation as well, like 1 to 2 per day for like certain 10, 15, 20 seconds. So you can try your hands on and judge by yourself. So Freepik is kind of one thing which I use on a day-to-day basis. Second thing which I use is Midjourney. For sure, the Midjourney is, but Midjourney paid version, not the uh, normal version, because normal version kind of messes it up Yeah. because there are so many things going on at a certain time. So paid version is kind of recommended, and then Runway ML. So Runway ML is always a go-to thing for video editing kind of stuff where you need to edit the stuff. So both these things do have a free version, but they are paid after a certain time. But when you looking for a professional grade software where you can do all that stuff using all the aggregated engines together, but pay a less amount than that, so that is free. So So that's sure, why I would recommend. Yeah. surely we'll recommend the users to use Freepik, and if some affiliates come out, then we will be happy to accept them. You can actually drop a affiliate link into this video. Yeah, yeah. So the runway ML situation was also like it was a very good thing when it was introduced. Now it is so like giving very good outputs. So I remember a friend. We were also talking to him lately. I'm talking about Mhm. Mehdi. So he used to work with Okay, us yeah. as a 3D designer, right? So even he was Hmm. like used to this kind of a situation where we used to have like follow the whole process. We used to go through storyboarding हो गया फिर उसके बाद we used to like draw a character, then we used to do the 3D model, then we used to like make a 3D model, then like the OBG files ये वो, then the rigging. So this is all of the process वो follow करते थे. Now what he actually does is like AI से एक image generate करेगा, then put it into Runway ML, and then he cuts it out, put the SFX डाल देगा कहीं से, and then get amazing outputs out of that. So the work is easy. You just know how. You just have to know how to do it, right? So वही बात है. As soon as you start AI as a friend who is there to help you in each and everything, right? You can make your workflow very efficient and very fast. Correct. So you won't believe I've been working on this program in the company. So that checks the wallet of a user. So I'm talking about cryptocurrency, right? So basic introduction of that particular software is you can enter every cryptocurrency wallet has a unique address associated to that. So Correct. you can copy that wallet address, and once you fed into that software, actually what it do is it actually fetches all the balances of token which is associated that with that wallet addresses, checks the recent transaction of that wallet addresses, whatever the wallet has done, then fetches with those transaction details that fetches to the contract addresses, right? So before going into that deep, I'll just give you an overview that every wallet has several different currencies around different chains, blockchains, right? Yep. Blockchains are the group of networks, right? So every chain has its own algorithm, all functioning types and everything, and all the peoples have their assets segregated around different chains, right? So every chain has their own transaction data, right? And in transaction data, there are like several details which are associated with the transaction. So let's say if we are talking about transaction, जैसे अपन बैंक में करते हैं तो जैसे ट्रांजेक्शन नंबर आता है, अपन फोन पे करते हैं तो ट्रांजेक्शन एक Correct. कोड मिलता है अपने को, तो वैसे ब्लॉकचेन में उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन हैश, राइट? Yes. एंड जैसे फोन पे में आता है कि आपने इससे इसको भेजे हैं तो आप Yeah. डायरेक्टली भेजते हो. क्रिप्टो में आप जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो वो एज अ मिडिल लेयर एक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको देता है. तो
crypto में, as you know, that it's a decentralized and centralized environment are there, डिसेंट्रलाइज राइट? दोनों सो को सेंट्रलाइज में भी नो कि चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस यूज कर रहे हैं तो बीच में बाइनेंस एक्ट करेगा, वो आपके बदले में ट्रांजेक्शन नोट करेगा, तो वो सब चीजें, not going deep into that, there is a contract address which is associated with the transaction details. तो वो क्या करता है, वो सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस लेता है और देखता है कि हर कंपनी के पास में उनके वॉलेट में कितना बैलेंस है, ठीक है? सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेयर बाय लेयर जा करके ढूंढना और सब चीजें करना. आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ बैक एंड, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड इतना डीपली कि मैं खुद का ही पूरा एक परफॉर्मिंग वो बना दूं. But there is a app called Cursor. The friends who are developer who are listening to it, they are familiar to it. So Cursor एक app है. So that has the Claude engine integrated into it. Claude is a AI platform. So what I did is uh, I got one prompt from my senior that this is something which we want. This is how the function. This is how it will function. So I just got into the AI and gave the input एंड स्टार्टेड इट रनिंग. ऐसा नहीं है अब एआई को समझ में आ गया, मैंने वो प्रॉम्प्ट को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके भी बताया, एक एक तरीके भी बताया, तो ऐसा नहीं है एआई ने एक बार में मेरे को दे दिया वो, राइट? इट टुक अराउंड मोर देन अ वीक, ओके back and forth, back and forth, back and forth. So when AI is fixing something, it is actually disrupting the codes which are actually working at that time, right? There are many points, many frustrating points happened during that particular process कि मैं बिल्कुल 90% काम खत्म करने पे आ जाता था और फर्स्ट वाला काम जो एकदम फर्स्ट स्टेप रहती है वही ब्रेक हो जाती थी, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एआई, with AI you can't communicate as a human, right? During that process I understood कि AI से communication कैसे करनी है. You need to give very specific prompt, let the AI understand कि what it needs to be changed and what it doesn't, right? तो फिर धीरे धीरे मेरे प्रॉम्प्ट ऐसे होने लग गए कि मैंने उसको बताना चालू कर दिया कि यहाँ तक वर्किंग्स ठीक है, ये कोड मत चेंज करो, ये कोड चेंज करो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो इतना सेग्रीगेटर और इतना ग्रैन्युलर इनपुट देना पड़ता है एट अ सर्टन पॉइंट, उसको इतना डेटा फीड वापस से करना पड़ता है एट अ सर्टन पॉइंट जहाँ पे मेरे को फ्रंट एंड के लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसा बनाओ बटन. मैंने नेट से HTML CSS उठा करके AI में फीड कर दी कि यूज दिस HTML CSS एंड मेक द बटन, उसने वो कर दिया. At the same time, when we work as a friend with AI, giving it a granular inputs of what we want, how we want, and where we want it to be, right? And using it as a asset, right? तो वो एक बहुत अलग गेम हो जाता है फिर. यू कैन बी वेरी प्रोडक्टिव, यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हुआ, पहले 2-3 दिन में मैं तो खुद समझ नहीं रहा था, जो एआई बोल रहा था वो दंडन करते जा रहा था और मैं बैक एंड फोर्थ ही कर रहा था. धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हाट आई थॉट इज कि मैं कोड को समझने की कोशिश करूँ कि भाई जहां तक वर्क कर रहा है वहां तक तो कर रहा है, उसके बाद में चेंज करना है. तो फिर मेरे प्रॉम्प्ट्स भी चेंज होने लग गए, चीजें चेंज होने लग गई, कम्युनिकेशन वे चेंज होने लग गया, एंड एआई इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू रिस्पॉन्ड इन दैट वे. अब एआई में के अंदर कोई फीलिंग या दिमाग नहीं है, तो द सिंपल थिंग इज कि मेरे प्रॉम्प्ट सही होने लग गए थे फिर. देन वी रीच टू एंड वी ग्रोड इन अ वे कि वो वर्क किया, फिर फाइनली एवरीथिंग इज वर्किंग राइट नाउ एंड आई गॉट द टूल वर्किंग राइट नाउ. सो 1-1.5 हफ्ते पहले जो इमेजिनेशन थी, एक नॉन कोडर नॉन डेवलपर, ऐसा कोई बंदा जिसने नहीं बनाया आज तक फुल्ली कोडेड इंजन कोई, वो एक्चुअली एक पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर परफॉर्मिंग इंजन बना चुका अभी. तो ये एक काइंड ऑफ अ जर्नी है जो एआई कर सकता है, राइट? अभी भी वो सॉफ्टवेयर ऑन पॉइंट नहीं है, राइट? दैट नीड्स सम काइंड ऑफ फिनिशिंग, बट मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है कि वो परफॉर्म कर रहा है विदाउट मी नोइंग एनीथिंग अबाउट फ्रंट एंड एंड बैक एंड. करेक्ट करेक्ट सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. एंड तो एआई को ऐसे यूज कर सकते हो आप, बट इससे क्या हुआ, इससे किसी फ्रंट एंड इंजीनियर या बैक एंड की जॉब नहीं गई. हाँ ये तो हाँ सही
yes. इससे कंपनी को एक नई चीज पता चली कि वी कैन यूज द पीपल इन द कंपनी which can make things on their own which can benefit the company in several different ways. Correct, अब correct. अगर इसके अंदर what we have in the company which is a front end and back end, if we just include the technical people inside it, तो जो थोड़ी बहुत बिट्स एंड पर सॉफ्टवेयर में बचे हैं वो टेक्निकली खुद ही फुलफिल कर देंगे, हाँ. राइट? तो जहां पे एक पूरे इंसान का शायद से महीना भर लग सकता था, वहां पे उसको एक पूरा बहुत स्ट्रांग बेस मिल गया जो कि परफॉर्म कर रहा है, दैट इज गिविंग अ रिजल्ट, कोड इज नॉट ब्रेकिंग, राइट? एंड फ्रंट एंड वाले को भी पूरा फ्रंट एंड मिल गया जहां पे कोड ब्रेक नहीं हो रहा है, इट इज परफॉर्मिंग. So everyone has the base. If company wants to release this product tomorrow, they just need a week of input from the professional perspective and release it as per their norms. So वो एक चीज का benefit है. So AI is benefiting somewhere, but at the end you need to take it as a asset, not the competition. You cannot completely rely कि हाँ ये मैंने दे दिया हम्म. ये अपने आप कर लेगा. हाँ, But वो नहीं होने वाला है, वो अभी नहीं कभी नहीं होने वाला है वो, क्योंकि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, राइट? द yeah, एआई पर्सन, अब सिंपली बात है, आप एआई के अंदर इतना फीड नहीं कर सकते कि वो एक बार में आपकी बात समझ जाए. इट इज अ प्रोसेस. like from what you were saying मेरे को एक चीज I noticed कि at some point you have to like understand कि you are talking to a computer तो आपको prompt भी उसी तरीके करेक्ट. से देना है कि आप भी एक computer हो. You have to be very specific about what you are speaking and करेक्ट. what you want to get out of it. राइट. अगर एक ह्यूमन की तरह बात करोगे तो आउटपुट भी एक्स वाई नहीं आएगा वो. इनकंक्लूसिव आउटपुट्स ही देता रहेगा. तो दैट इज पहले एक टाइम पे तो शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लाइक मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स जो थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, उसमें पूरा एक रिजोल्यूशन वगैरह सब डाल के बहुत कुछ आई करना गेस पड़ता था. अभी भी राइट नाउ अभी तो काफी इजी है, ह्यूमन वे में चल रहा है अभी, होपफुली अगले 2 साल में तो बहुत ही इजी हो जाएगा. बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितना उसको बताओगे, एक बार में बताने की कोशिश करोगे, वहां रायता फैलता है. यू नीड टू ब्रेक इट डाउन, गिव इट अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय योरसेल्फ, क्योंकि जो एआई यूज कर रहा है ना, और जो वो चीज पे काम कर रहा है, उसको जब तक समझेगा नहीं खुद, तब तक वो पूरा एंड तक नहीं ले जा सकता. क्योंकि अभी जब मैंने समझा तो मेरे को पता चला फ्रंट एंड सर्वर कैसे सेट होता है, बैक एंड सर्वर कैसे सेट होता है, सर्वर स्टार्ट एंड ऑन में कैसा करना पड़ता है. तो ये टेक्निकल डिटेल्स जब आप धीरे धीरे समझने लगते हो, मेरे लिए भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम था ये. पहले तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, पर अब मेरे को कुछ ना कुछ तो पता है, जिससे मैं एटलीस्ट कोई नया टूल अगर बनाने जाऊं ऐसा ही, तो मैं वो बेसिक गलतियां 3-4 दिन की नहीं करूंगा, तो द प्रोसेस बिकम शॉर्टर फॉर मी व्हेन आई अप्रोच इट फॉर द सेकेंड टाइम. तो ये एक ग्रोथ होती है आपकी. तो विथ एआई यू लर्न एज वेल, राइट? So it is a teacher as well, or indirectly it teaches you the things as well. So वो लोग जो एआई को ऐसे चलाते हैं कि प्रॉम्प्ट डाल के रख दिया और फिर इंस्टा ब्राउज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन है. बट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, you can grow with AI and very nicely you can uplift yourself in terms of professional way as well. करेक्ट. there's something called as a visual co-pilot वो भी है ना कि like हाँ. वो असिस्ट की हाँ. that वो भी बहुत हेल्प कर सकता है आपको आपके लर्निंग कर्व के अंदर कि like अगर मैं अभी एक नया टूल समझने भी की कोशिश कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स अगर मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है एंड आई एम यूजिंग दैट एआई विजुअल को पायलट तो वो मुझे बताता जाएगा कि अगर तुम्हें ये एडिट करना है इस पर करो उस पर करो. यूजुअली व्हाट द प्रोसेस पहले होता था कि अगर मुझे कुछ कट भी करना है तो अगर पता नहीं है तो जाके गूगल करूँगा फिर वो गूगल पे सर्च हम्म. है यहाँ पे जाओ गो टू द लेफ्ट राइट कॉर्नर एक्स वाई जेड वहाँ पे जाके तुम करो. हम्म. वो टाइम सेविंग बहुत हो चुका है अभी दैट इज़ करेक्ट. वेरी सही है. और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जॉब बीइंग अ वीडियो एडिटर, डिजाइनर और क्रिएटिव फील्ड में जो जॉब रहती है वो बहुत टाइम टेकिंग हुआ करती थी एक टाइम पे. नाउ विद दिस एआई बीइंग को एग्जिस्टिंग विद अस, इट इज बीइंग वेरी इजियर. एंड एक जो फाउंडेशन थी काफी लोगों की कि वो इतनी टाइम तक नहीं बैठ पाते या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ टास्क से जो प्रोसेस में आते हैं, बट वो है बहुत क्रिएटिव लोग, राइट? ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव लोग मैंने देखे हैं जिनका सिटिंग टाइम बहुत कम होता है, वो बैठ नहीं पाते हैं, राइट? क्योंकि वो मोनोटोनस काम नहीं कर सकते, वो फिर अपने ही कुछ अलग करते हैं. बट ऐसे लोग अब एआई के थ्रू बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स बना करके उनकी इमेजिनेशन को
डेवलप करके कुछ अच्छा चीज क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ, इफ वी को एग्जिस्ट इन अ हेल्दी वे, दैट इज गुड. बट जहाँ पे फिर वो थोड़ा बहुत स्यापा फैलता है, जैसे क्या बोले अब, स्ट्राइक चल रही थी यूएस में, एवेंजर्स के ट्रेलर में एआई का सीन होना, तो वो जो चीजें हैं वहां पे थोड़ा बहुत कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इफ दैट इज हैपनिंग, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन टच उसमें से मिस होगा, क्योंकि जो एक्चुअल फाइनल वे है जिसमें फाइनल मूवी आएगी, उसमें एआई कुछ भी नहीं होने वाला. हाँ देख, वो तो काउंटर राइट. पर्सपेक्टिव हर चीज पे होता ही है. इट्स लाइक द हाँ. गिगली थिंग जो था कि तो कई लोग ट्रेलर में उसको. यूज करने से अगर इतना बवाल मच रहा है, तो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल है बोलना कि वो सही है गलत है क्या है. हाँ, कुछ जॉब्स जा रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, कि एक मोनोटोनस जॉब, एक जैसे टेक्निकल वे में रोटोस्कोपी की जॉब रहती थी, ऑलमोस्ट दैट इज काइंड ऑफ गेम की वो खत्म ही हो गई है. राइट. सिमुलेशंस की जॉब्स है, वो भी आने वाले टाइम पे रियल टाइम सिमुलेशंस होंगे 3D के, तो सिमुलेशंस की जॉब भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत डाइसी हो. There are many perspective in filmmaking that is going to be changed, right? In design as well, it will impact, but it is the way how you take it, right? You need to create your own way of doing things using AI, then you are up the game, right? अगर आप रोटोस्कोपी आर्टिस्ट ही थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अब एक टाइम पे तो यार पोस्टमैन भी हुआ करता था, है ना. एक टाइम पे घर घर जाके चिट्ठियां बांटा करते थे, तो पोस्टमैन की जॉब भी गई ना. सो इट इज अ सिंपल थिंग कि हर 10-20 सालों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो चीजों को इजी करेगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपको कितना हैम्पर कर रही है ना. अब एक टाइम पे तो अपन किराने वाले भैया के पास खाता चला के ही पूरा सामान लाते थे. आज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो उससे किराना दुकान बंद थोड़ी हो गई, वो तो उसकी जगह पे है. हो सकता है आने वाले टाइम पे वो बंद हो जाए, कोई क्या नहीं बोल सकता. सो इट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी फील्ड में इतना डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है. आज ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, तो रेस्टोरेंट बंद थोड़ी हो रहे. ब्लिंकिट है तो किराना बंद थोड़ी हो रहे. इट इज जस्ट द ईज ऑफ टाइम, और टाइम की बात है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम. सो एट द एंड ऑफ द डे, कितने ही एआई आ जाए, हाँ 10 जनों की जगह 3 जन लगेंगे, 10 जनों की जगह 1 जन लगेगा, पर जन तो लगेगा, क्योंकि एंड एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन रिक्वायर्ड है चलाने के लिए. राइट. बिकॉज वो सर्टनली, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द फील्ड, राइट, यू कांट अंडरस्टैंड. जैसे इफ आई टेल यू कि आप एआई को प्रॉम्प्ट दे दो एंड यू कैन मेक द यूआई यूएक्स स्टफ, बट इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ यूआई यूएक्स, एआई ने जो बना के दिया है, हाउ यू कैन बी सो श्योर कि ये फ्रंट एंड में कोड होके ऐसे ही आएगा. राइट. तो वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है उस फील्ड का, उसका डीप डाइव होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. एआई ने बनाया है तो करेक्ट है ये जरूरी नहीं है. So you need to understand